Hello everyone, welcome back to this channel, The Bitter End. The motive of this channel is that you keep going up. Slow or fast does not matter, but the direction should be always the up. Now you know that we have got a Python series for beginner and this is lecture number 2. In lecture number 1, it was an overview on what is Python, its advantages, application and the giant organization which are using the Python. Now in this lecture, this is an introduction of a series in which you will understand how to get the Python installed in your devices. Then we will learn the basic Hello World program. Then the complete topics which we are going to cover in this beginner series. And finally, some of the important keywords which we will be using in the Python. So let's get started. So Python is a widely used, general purpose and a high level programming language. It was designed with an emphasis on code readability and its syntax allow programmer to express their concept in a fewer lines of code. Python is a programming language that you work quickly and integrate system more efficiently. Now there are two major Python versions. One is Python 2 and another is Python 3 and both are quite different. Since we should always be updated with the newer technology, so in this series we will be working on Python 3. So step number 1 is that we have to get an interpreter which can interpret and run our program. Now in this modern era of digital technologies, one can run the Python directly from its browser without explicitly installing Python in the operating system. Now you can use many IDEs for Python like Geek for Geeks, Python Fiddle, Python Anywhere, and online GTP compiler. These are few of the compilers which you can run online. Means आपको नेट चाहिए रहेगा इसे रन करवाने के लिए. But what if you want to practice Python in a offline mode? तो आपको Python का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसमें हार्डली 2 मिनट लगेगा. And to install or download that link, आपको Python की official site पे जाना पड़ेगा. आप जैसे ही इस link पे जाओगे, this is how a picture will look like. I mean, a screen will look like. तो इसमें आप भी latest पे अपना है Python 3.9.6 version. आप यहाँ क्लिक कर लेना और डाउनलोड कर लेना. एक फाइल डाउनलोड होगी, उसे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको जनरल इंस्टॉलेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा. नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर देना एंड दैट्स ऑल. Now you have your Python interpreter in your system. How to check if you have the Python installed? तो आप सिंपली अपने सर्च बार में जाना एंड यहाँ टाइप करना Python and you will get this Python 3.9 version and when you will open this is how it will look like. Okay, so for example I am typing help. This is how it will give me the few general instructions like the keywords. इस lecture में हम keywords के बारे में पढ़ेंगे. Then you can read each module of a Python and everything, right? So there are few of the commands which you can try and use. So yeah. Now the second step is to write the Hello World program. तो अब इसमें हम दो चीजें यूज करने वाले हैं. Let's see. तो यहाँ पे अब मैं hash लिखूंगी. See, when I will write a hash Hello World program, तो जैसे ही मैंने हैश टैग लगा दिया, मेरा ये जो इंटरप्रेटर है पाइथन का वो इसे इग्नोर कर देगा. इसे ये अपने इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा. अब जब मैं लिखूंगी कि प्रिंट, ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है और अगर आप स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी. सो आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. So that's how Python will print our hello world. It's that easy. अब आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं इनपुट दे रही हूँ hello world तो मुझे नहीं बताना पड़ रहा है Python को कि ये एक string टाइप है या नंबर टाइप है या float है. ये डेटा टाइप क्या है मुझे इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. Python ने खुद ही समझ लिया. So Python का जो इंटरप्रेटर होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है.
Okay, so basically the hashtag we use for the comments, तो ये जो statement होती है, this is ignored by the interpreter and serve as a documentation for our code. तो कोई फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कोड फॉर अ फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो बिफोर ईच लाइन यू कैन एक्सप्लेन व्हाई दिस लाइन हैज बीन देयर इन योर कोड. सो फॉर दैट इट विल एक्ट एज अ डॉक्यूमेंटेशन. नाउ अपन ने एक वर्ड यूज किया प्रिंट. सो दिस इज अ फंक्शन जिससे आप किसी भी चीज को प्रिंट करवा सकते हो, एंड ये ऑलरेडी एक न्यू लाइन के साथ फिक्स्ड होता है. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ प्रिंट कर रही हूँ प्रिंट 20 फॉर एग्जाम्पल. तो देखो यहाँ 20 प्रिंट हो गया. तो हेलो वर्ल्ड एंड 20 अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ है, एक लाइन में दोनों प्रिंट नहीं हुए हैं. बट यही अगर आप जावा में या फिर C++ लैंग्वेज में ये करते तो ये एक लाइन में प्रिंट होता. क्यों? क्योंकि वहाँ प्रिंट का मतलब सिर्फ प्रिंट होता है, प्रिंट प्लस न्यू लाइन नहीं होता. सो बेसिकली वो कर्सर को न्यू लाइन में लेके नहीं आता. बट पाइथन में जो हमारा प्रिंट फंक्शन है, इट ऑलरेडी हैव अ न्यू लाइन इन इट. ओके, now let's talk about the Python basics. Now I hope कि आपके मशीन में, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, इसमें आपका पाइथन का इंटरप्रेटर होगा ऑफलाइन. बाकी आप ऑनलाइन, मैं JDB यूज करने वाली हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल गीक फॉर गीक का, प्रोग्रामीज का और एनीथिंग. अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रोग्राम अब अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं उसे मैं ऑनलाइन कंपाइलर में रन करूंगी. रीज़न ये है कि ये जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ना, ये लाइन बाय लाइन वर्क करता है. लाइक अगर मैं 7 लाइनों का कोड एक साथ इधर लिख दूंगी, सो इट वोंट हैपन लाइक दैट. मैंने एक लाइन लिखी, उसने उसका रिजल्ट दिया. सो बेसिकली इट इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन, एंड आई डोंट वांट दैट. लाइक मैं चाहती हूँ कि यार मैं 7 या जो 6 लाइनें लिख रही हूँ वो एक साथ मुझे रिजल्ट दे. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग द ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, but you can do the same in your compiler as well. Okay, now in other programming languages like C, C++, and Java, you will need to declare the type of variable, but in Python you don't need to do that. Just type in the variable, and when values will be given to it, then it will automatically know whether the value given would be integer, float, character or a string. तो ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई, दैट यू डोंट नीड टू टेल पाइथन ओके फाइन नाउ आई एम गोना पुट दी स्ट्रिंग इन टाइप. पाइथन विल अंडरस्टैंड इटसेल्फ कि भाई ये इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, क्या है. तो फॉर एग्जाम्पल ये एक कोड है जिसे मैं रन करूंगी, और इसे रन करने के बाद हमें क्या सीखने को मिलेगा, लेट्स सी. मैं हेलो वर्ल्ड वाला प्रिंट हटा देती हूँ एंड इसके जगह ये वाला कॉपी कर लेती हूँ. अब क्योंकि मैंने देखो यहाँ हैशटैग डाला है, तो ये इंटरप्रेटर इंटरप्रेट नहीं करेगा, इससे ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा. अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है माई नंबर करके, जिसकी वैल्यू मैंने 3 के बराबर लिखी है और उसे प्रिंट करवाया है. सिमिलरली नंबर माई नंबर 2 एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू ली है 4.5 एंड उसे प्रिंट करवाया है. सिमिलरली एक वैल्यू ली है जिसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर रखा है एंड वो प्रिंट करवाया है. अब आपके अकॉर्डिंग क्या ये प्रिंट होना चाहिए? लाइक अगर मैं C लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज की बात करूँ तो नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार मैंने तो ये बताया ही नहीं है कि 3 इंटीजर है क्या, या 4.5 फ्लोट है, या हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है. तो उस अकॉर्डिंग तो ये प्रिंट नहीं होना चाहिए. तो लेट्स सी. तो आप देखो 3, 4.5 एंड हेलो वर्ल्ड तीनों के तीनों प्रिंट हो चुके हैं. इसका मतलब कि पाइथन ने खुद ही पता लगा लिया कि 3 इज एन इंटीजर, 4.5 इज अ फ्लोट एंड हेलो वर्ल्ड इज अ स्ट्रिंग, एंड उसे प्रिंट भी कर दिया. सो आवर पाइथन इज इंटेलिजेंट, राइट? ओके, see how simple is it? Just create a variable and assign it any value you want, and then use the print function to print it. That easy it is. Now Python has 4 type of built-in data structure. To name them, that is list, dictionary, tuple and set. इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हमारे आने वाली सीरीज में.
बट अभी के लिए क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है तो आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू कवर. So list, dictionary, tuple and set, these are the built-in data structure of a Python, which we will be studying in great detail in our further videos. Now, list के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूँ कि ये होता क्या है. So list is the most basic data structure in Python. And list क्या होती है? म्यूटेबल होती है. म्यूटेबल मतलब जिसे हम चेंज कर पाए. That is, the items can be added to the list later after list creation. ऐसा मानो जैसे कि आप लोकल मार्केट में जा रहे हो और आपने एक लिस्ट बनाई है कुछ आइटम्स को खरीदने की, तो ऑब्वियसली आप उस लिस्ट में कुछ हटा भी सकते हो और कुछ एड ऑन भी कर सकते हो, राइट? तो वो वही लिस्ट है. सो इन दिस लिस्ट यू कैन ऐड, यू कैन रिमूव. हम जब ऐड कर रहे होते हैं तो वी यूज दिस वर्ड अपेंड. अपेंड का मतलब ऐड करना. तो ये एक पाइथन प्रोग्राम है जिसे मैं जब रन करूंगी सो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ लिस्ट इज क्रिएटेड एंड हाउ आई कैन ऐड इन लिस्ट. सो लेट्स सी. Okay, didn't copied. Wait for a second. Okay. Basically, Python program to illustrate a list, create a empty list. So basically देखो मैंने यहाँ एक empty list डाली है. हम लिस्ट को ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड अगर उसके अंदर कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट. अब इसमें मुझे डेटा एंटर करना है तो मैं क्या करूंगी, ये नम है, मेरा ये लिस्ट है जिसमें मैं अपेंड कर रही हूँ 21. सिमिलरली मैं 40.5 अपेंड करूंगी एंड सिमिलरली एक वर्ड है स्ट्रिंग जिसे मैं अपेंड कर रही हूँ. अपेंड मतलब कि लिस्ट के अंदर ऐड कर रही हूँ एंड देन आई एम प्रिंटिंग दिस लिस्ट. सो मेरा अकॉर्डिंग ये जो मेरी एक एम्प्टी लिस्ट थी अब उसके अंदर 21, 40.5 एंड स्ट्रिंग आ जाना चाहिए. देखते हैं आता है कि नहीं आता है. So congratulations, we got a list having these three as its value. Now let's further move. So we will learn how to take input from a user and hence manipulate it or simply display it. Input function is used to take the input from a user. अच्छा चलो अभी अपन ने लिस्ट के बारे में पढ़ा, हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं ये पढ़ा. अब अपन आगे चलते हैं कि इनपुट फंक्शन क्या होता है. सो बेसिकली दिस वर्ड इनपुट इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. अभी तक मैं वैल्यूज को डिक्लेयर कर रही थी, ठीक है ना, लाइक इन अर्लियर program I was giving the variable its value, right? My number is equals to 3. But what if I want कि भाई user मुझे value दे, तो उसके लिए we use a word input. So let's run this program and see how it works. So basically Python program is to illustrate getting input from a user. So मेरा intention है कि that this variable name ये user से input ले, एंड जब यूजर से इनपुट ले तो यूजर के सामने दिखना चाहिए दैट एंटर योर नेम, क्योंकि वरना यूजर को थोड़ी ना पता चलेगा कि मुझे क्या वैल्यू देनी है. अब फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया नेम हर्ष, जो कि अभी मैं मिटा रही हूँ क्योंकि ये हम एंटर करने वाले हैं, राइट? एंड जैसे ही आएगा सो आई वांट कि ये प्रिंट हो यार हेलो, एंड देन उसके बाद नेम, जो भी नेम यूजर ने दिया होगा वो प्रिंट हो जाए. लाइक फॉर एग्जांपल मैं सृष्टि दूंगी तो प्रिंट होना चाहिए हेलो सृष्टि. सो लेट्स रन दिस. सो एंटर योर नेम में फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग सृष्टि. अब ये देखो आ गया ना हेलो सृष्टि. सो दिस इज व्हाट दिस प्रोग्राम विल डू. इट इज इजी. मैंने एक फंक्शन यूज किया है इनपुट, जो कि मुझे अलाउ करेगा यूजर से इनपुट लेने का, राइट? अब ये जो सिंटैक्स है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने जो सिंटैक्स यूज किया है इसकी चिंता मत करना, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट
आई एम डैम श्योर कि अभी तक अपन ने 3 प्रोग्राम रन कर लिए एंड आपको तीनों प्रोग्राम देख के तो समझ में आ गए होंगे। भले ही अभी आप खुद से लिख ना पाओ, पर देख के समझा तो दोगे। एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ पाइथन, इट इज हाईली रीडेबल लैंग्वेज। कोई भी इसे रीड करके अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि इट इज एज सिमिलर एज टू इंग्लिश, राइट। तो चलो अपन ने इनपुट फंक्शन के ऊपर भी पढ़ लिया। Now let's talk about the keywords. Okay, like selection in Python is made using the 2 keyword if, elif and else. Okay, so basically मुझे select करना है। For example मेरे पास 3 ऑप्शन है, उन 3 ऑप्शन में से मुझे किसी एक को select करना है depending upon a case. For example 3 टाइप की मूवी है एंड इट्स लाइक कि पहली मूवी इज फॉर अंडर 10 year of a student, second movie is for 10 to 20, and third movie is for 20 more than 20 years of a person, right? तो वहां पे एक कंडीशन आ गई एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट दैट विच कंडीशन इज ट्रू एंड देन द प्रोग्राम विल रन। तो इस केस में हम वैल्यू यूज करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं लाइक इफ, एल्स इफ एंड एल्स। तो चलो ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं एंड आफ्टर रन मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। तो देखो एक वेरिएबल है नंबर 1 जिसे मैंने 34 असाइन किया है और अब मैंने कंडीशंस रखी है। अगर नंबर 1 12 से ज्यादा है तो हमें प्रिंट करना है दैट नंबर 1 इज गुड। अगर वो 35 से बड़ा है तो मुझे प्रिंट करना है दैट नंबर 2 इज नॉट गुड। एंड वरना अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, ना ही नंबर 12 से बड़ा है और ना ही नंबर 35 से बड़ा है, तो मुझे प्रिंट कर देना है दैट नंबर 2 इज ग्रेट। ठीक है, सो लेट्स रन। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक राइट नाउ, इंडेंटेशन एरर आ रहा है। सो let me see what's wrong in this indentation. I don't think okay fine, तो ये इंडेंटेड नहीं था प्रिंट स्टेटमेंट्स, तो ये प्रॉब्लम आई थी। पाइथन में हम कर्सर ब्रैकेट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट, वो यूज नहीं करते हैं किसी फंक्शन को बिगिन करने के लिए, हम यहाँ इंडेंटेशन को यूज करते हैं। तो वही मेरा एक एरर आ रहा था। तो देखो नंबर इज गुड मेरा प्रिंट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा नंबर है 34, तो इंटरप्रेटर ने कैसे इंटरप्रेट किया होगा? तो वो सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा, मेरा नंबर 34 है जो कि 12 से बड़ा है, तो वो ऑब्वियसली प्रिंट कर देगा और बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर 40 होता तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाती, फिर मेरा इंटरप्रेटर इस वाली कंडीशन में आता। अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, क्यों? क्योंकि 40 इज ग्रेटर देन 35। तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए ना, वो ये आना चाहिए दैट नंबर 2 इज नॉट गुड। सी, नंबर 2 इज नॉट गुड। फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर 12 से भी छोटा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर 8 है, तो अब मुझे क्या प्रिंट होगा दैट नंबर 2 इज ग्रेट। So if I run it, I will get number 2 is great. So I hope आपको समझ आ रहा होगा और आपको ये भी फील हो रहा होगा कि Python is really easy to understand. Even if you can't write the codes yourself, क्योंकि आपको अभी indentation, syntax ये सब नहीं सिखाया है, but you can easily understand this codes. Okay. Now you can think of a function. अब function क्या होता है? इतनी बार function word तो ले लिया, like print statement में I used the function word, append में मैंने word use किया था function, and even in this input function. तो ये function होता क्या है यार? So function को आप as a bunch of code मान सकते हो कि कुछ लाइनों का कोड होता है function, जिसका एक particular task होता है। सो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में मम्मा है या पापा है, आप ये मान लो जैसे मॉम इज अ वर्ड, एक फंक्शन है,
और मम्मा को बहुत सारे काम करने होते हैं. So basically the function mom has several work to do. It has several tasks to perform. So this is the function. So function is nothing but a bunch of code, and the intention of it is to perform a particular task. So for example ये मेरा एक कोड है. अब इस कोड को मैं प्रिंट करके ही बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है. ठीक है ना. ओके. बेसिकली फंक्शन क्या होता है ये जानना है. तो यार किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है, राइट. एंड डिफाइन का हम कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज DEF. DEF का मतलब है कि आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो. जो भी आप DEF के बाद लिखते हो दैट इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शन नेम. और ये ब्रैकेट के अंदर आप कुछ लिख भी सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट कि मेरा फंक्शन 2 ही इनपुट ले तो आप लिख सकते हो दैट A, B. बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट एम्प्टी. तो यार ये जो आपने फंक्शन बनाया है हेलो, इसका वर्क है कि जैसे ही मैं ये फंक्शन को कॉल करूँ ये प्रिंट कर दे हेलो. एंड 2 बार एक्चुअली प्रिंट करे, दैट वंस हेलो एंड देन हेलो अगेन. तो यार ये देखो, ये मैंने डिफाइन कर दिया है फंक्शन जिसका नाम है हेलो. जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी ये 2 परफॉर्म करेगा एक्टिविटी. पहले तो वो बोलेगा हेलो एंड वापस से वो बोलेगा हेलो अगेन. तो चलो मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ. ओके, आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन. फाइन, अगेन इंडेंटेशन एरर आ गया. आई थिंक कॉपी करने में इंडेंटेशन एरर आता ही मेरे को. ओके, देखो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया हेलो, इसने अपना टास्क परफॉर्म कर लिया. इसने हेलो एंड हेलो अगेन प्रिंट कर दिया. अब अगर मैंने ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया होता तो यार मैं ये पूरे पूरे वर्ड्स लिख रही होती. तो इसने ये 2 लाइन के कोड को सिर्फ एक वर्ड से रिप्लेस कर दिया. एंड दैट इज द पावर ऑफ अ फंक्शन. ये तो आपको सिर्फ 2 लाइनें दिख रही है बट एक एक पेज जितना बड़ा कोड भी यू कैन सिंपली कॉल इट बाय अ फंक्शन, राइट. लाइक कई बार आपके कोड्स में होगा कि आपको एक ही चीज कई बार कॉल करनी है. लाइक यू अगेन एंड अगेन वांट कि ये चीज रिपीट हो. तो यार उसके लिए बार बार वो सेम कोड लिखने से अच्छा है कि उसे एक फंक्शन के अंदर डाल दो एंड उस फंक्शन को आप बार बार कॉल करो. ठीक है. नाउ व्हाट इज लूपिंग. सो फॉर एग्जाम्पल आपको एक कोड लिखना है जो कि प्रिंट करे 1 से लेकर 100 तक का नंबर. तो एक तो आप मैनुअली कर लो, लाइक प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 टिल प्रिंट 100. बट एक स्मार्ट कोडर अपना टाइम बचाने के लिए भी और इंटरप्रेटर का जो टाइम होता है उसे बचाने के लिए भी एक एफिशिएंट कोड लिखेगा. एंड उसके लिए वो एक लूपिंग चला देगा. लूप मतलब कि सिर्फ 3 लाइन का कोड है एंड उसके बाद इट कैन डू इट इटसेल्फ. तो इसे समझने के लिए मैं आपको वापस से एक कोड समझाऊंगी. एंड दिस इज अ लूपिंग. तो लूप के लिए यार 2 वर्ड यूज होते हैं पाइथन में. एक होता है फॉर और एक होता है व्हाइल. दोनों का काम एक ही है, बस सिंटैक्स अलग अलग होगा और कुछ नहीं. सो फर्स्ट स्टेप इन रेंज 5. तो इसका मतलब है कि यार मैंने रेंज ली है 5 तक की, उसमें से एक वर्ड है स्टेप और मुझे वो प्रिंट कर देना है स्टेप को. तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरी 0 से लेकर 5 तक की रेंज है एंड एवरीथिंग टिल देन इज नोन एज अ स्टेप. तो एक करके आप उस स्टेप को प्रिंट कर दो. सो ओके, आई एम अगेन गेटिंग एन इंडेंटेशन एरर. कुछ और आया ना है बट आपको इंडेंटेशन की इंपॉर्टेंस तो समझ आ ही रही है, राइट. तो देखो दिस इज व्हाट इट हैज प्रिंटेड नाउ. तो रेंज 5 था, तो 5 तक 5 तक कितने वैल्यू होती है? एक 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है. ठीक है. तो 5 तक जितनी भी वैल्यू है उन्हें मैंने एक वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया, वो है स्टेप. और मैं बोल रही हूँ कि भैया अब आप उस स्टेप को प्रिंट कर दो. तो वो सबसे पहले इसे स्टेप मानेगा, फिर 1 को स्टेप मानेगा, फिर 2 को स्टेप मानेगा एंड ऐसे कर करके वो सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा टिल 5. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ 10 तक, तो ये 9 तक की सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा. लेट्स सी.
0 से लेकर 9 तक की इसने सारी की सारी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लूप की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको यही टास्क खुद से करना पड़ता तो कितना सारा होता। देखो, प्रिंट 1, देन प्रिंट, लाइक आपको बहुत सारा लाइनों का कोड लिखना पड़ता और अपन ने वो चीज 2 लाइनों में कंप्लीट कर दी। एंड उसमें एक प्रॉफिट ये है कि आप 10 तक लिखो, 101 तक, अगर आप 10 की जगह 101 डाल दोगे ना तो 100 तक वो प्रिंट कर जाएगा विद इन अ सेकेंड। तो एक तो कंपाइलर टाइम कम हो गया, एक आपकी कोड का जो वर्क था, ठीक है, लाइक आपकी जो कोडिंग एफिशिएंसी है इन शॉर्ट वो बढ़ गई। तो यार इसमें तो देखो मैंने 3 लाइनें लिख भी दी हैं एंड स्टिल आई एम गेटिंग ओनली 1 2 3, एंड वहां मैंने सिर्फ 2 लाइनों में इतना सारा प्रिंट करवा दिया था। So this is the importance of a looping. So as the name suggests, it calls the repeating things again and again. We will use the most popular for loop here to understand what is looping. तो I hope आपको कोड के थ्रू समझ आ गया होगा कि लूपिंग होता क्या है। अब आपने ये पढ़ा यार लूपिंग क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, इफ एल्स एलिफ क्या होता है, इनपुट फंक्शन क्या होता है, लिस्ट क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, देन अपन को डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना होता है, बट डेटा टाइप आपको समझ आया ना क्या क्या होता है। तो यार अपन ने काफी बेसिक चीजों के बारे में बात किया, बट क्यों बात की, लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ टॉकिंग देम विदाउट टॉकिंग अबाउट द इंडेंटेशन, सिंटैक्स वगैरह। तो यार इन कोड्स को दिखाने का एक सिंपल सा मकसद था मेरा, वो ये था कि मैं आप लोगों को ये दिखा पाऊँ कि पाइथन इज सो easy to read. Even if you are a non-coder background, you can still read the Python with some basic, logic. So these codes were to show how easy Python is. These codes were to show that Python is like a simple English. And the most important part is to make you familiar with the Python. After all, this is an introduction video. Now let's talk about the topic. अब अपना पहला important topic start हो रहा है and that is a keyword. Keyword का क्या मतलब है? या keywords वो reserved words हैं Python में, जो कि एक function हो सकता है, एक identifier हो सकता है, एक variable हो सकता है, but उसका एक वर्क है, उसकी एक सिग्निफिकेंस है, तो आप उसे वेरिएबल्स में नहीं कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वी कैन टेक एनी वैल्यू, लाइक अभी अपन ने ली थी स्टेप, तो इस स्टेप कोई सा भी मैंने वर्ड ले लिया फॉर अ वेरिएबल, या फिर मैंने सबसे पहले लिया था नंबर 1, या फिर पहले मैंने और लिया था नंबर 01, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, बट कुछ को छोड़ के। और वो जो कुछ है ना जो आप नहीं ले सकते एज अ वेरिएबल, दीज आर द कीवर्ड्स। क्यों? क्योंकि इनका एक यार अलग से मतलब होता है, ठीक है। सो कीवर्ड्स इन पाइथन आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, as a function, or as any other identifier. So Python code to So this is a Python code which will basically demonstrate you the working of a keyword. So let's get started. Let me print. इस बार हम इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे वरना वापस से एरर आएगा इंडेंटेशन का। So we are importing the keyword from the keyword operator. ठीक है, तो बेसिकली मैंने सबसे पहले इंपोर्ट किया है कीवर्ड को। अब मुझे प्रिंट करने हैं सारे ही कीवर्ड्स, तो वो मैं कैसे प्रिंट करूंगी? लेट्स सी दैट। सो फॉर एग्जांपल मुझे आपको ये दिखाना है कि पाइथन में कितने कीवर्ड होते हैं, मतलब कि कितने ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिन्हें आप यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, फंक्शन और एन आइडेंटिफायर। तो उन्हें प्रिंट करने के लिए मैं ये वर्ड यूज करती हूँ, दैट कीवर्ड लिस्ट। तो मतलब जो आपकी कीवर्ड्स है ना उसकी पूरी की पूरी लिस्ट मुझे दे दो। तो बेसिकली अपन ने जो प्रोग्राम लिखा है दैट इज प्रिंट द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इज, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा कि कीवर्ड्स की लिस्ट है एंड फिर पूरी लिस्ट प्रिंट कर देंगे। फॉर दिस आई शैल टेक केयर ऑफ एन इंडेंटेटर। तो ये बीच वाली लाइन हटा देते हैं, ओके।
Now let's run. तो यार ये देखो, दिस आर दी कीवर्ड्स. सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ अ कीवर्ड. तो देखो ये जो पहली लाइन है ये इस वाली लाइन की वजह से आई है. एंड इसके बाद ये जो पूरा का पूरा लिस्ट आया है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ अ KW लिस्ट. KW इज फॉर कीवर्ड लिस्ट. तो जो पाइथन में कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट कर दो. तो देखो false, none, true, and, as, assert, break, class, continue, definition, delete, else if, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield. These all are the keywords which you cannot use as your variable name or a function name or as an identifier. Now, एक एक कीवर्ड का क्या मतलब होता है, बहुत इजी वर्ड्स हैं और जैसा नाम वैसा काम, ऐसी बात है. तो कीवर्ड्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं और ये वाला टॉपिक तो इसी लेक्चर में वाइंड अप करते हैं. तो यार ट्रू का मतलब होता है कि इट विल गिव अस अ बूलियन ट्रू. तो अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो TRUE, सो दिस इज नोन एज अ बूलियन वैल्यू, ये प्रिंट हो जाएगी. सिमिलरली आपकी अगर कोई कंडीशन या कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो FALSE प्रिंट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो एन अनदर बूलियन वैल्यू. अब ये नन कीवर्ड क्या है? सो ये एक स्पेशल कांस्टेंट है जो कि नल वैल्यू या वॉइड को रिप्रेजेंट करता है. बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, आई एम टेलिंग यू, राइट? सो डोंट कंफ्यूज इट. नाउ लेट्स सी कि एंड क्या होता है. सो दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन and return the first false value. It's not found in the return last. Similarly, यार and और वही बेसिक अपनी बातें हैं. इस लाइन को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ नहीं बोल रही है, ये बोल रही है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो स्टेटमेंट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है. सो दीज आर दी 4 कंडीशंस व्हिच आई गेट. तो अब इसकी एंड वाली कंडीशन क्या होगी? तो बेसिकली एंड में क्या होता है ना, जो पहली आपकी वैल्यू होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर आपकी पहली वाली ही फॉल्स आ गई तो वो आगे वाली को चेक ही नहीं करेगा, वो फॉल्स दे देगा अपन को. तो आखिरी की दोनों वैल्यू तो अपनी फॉल्स है. बट इन केस अगर आपकी पहली वैल्यू ट्रू है तो फिर वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा. अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू है तो आपको ट्रू भेज देगा, अगर फॉल्स है तो वो आपको फॉल्स भेजेगा. एंड दिस इज व्हाट विच वी हैव लर्नड इन आवर मैथमेटिकल इंडक्शन ऑल्सो. कोई नई बात नहीं है. तो बेसिकली यही बोल रहा है कि ये जो होती है ना, ये फर्स्ट फॉल्स वैल्यू को रिटर्न कर देती है. तो अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो वो उसे रिटर्न कर देगी, और अगर फर्स्ट वैल्यू आपकी ट्रू है तो फिर वो लास्ट वैल्यू को चेक करेगी. और के केस में उल्टा हो जाता है. उल्टा क्यों होता है ये भी यार लॉजिकल है, देख लेते हैं अपन. सो बेसिकली आपके पास ये दो कंडीशन है जिसमें से पहली कंडीशन है A एंड दूसरी कंडीशन है B. तो मान लेते हैं A है ट्रू, B है ट्रू. A है ट्रू, B है फॉल्स. A है फॉल्स, B है फॉल्स. A है फॉल्स, B है ट्रू. तो यार और वाले केस में आप क्या लिखोगे? A और B, मतलब कि कोई एक भी ट्रू हो जाए तो मेरा रिजल्ट ट्रू होगा. तब इस केस में क्या होता है ना, ये आखिरी वाली वैल्यू पे स्टिक रहता है. तो अगर पहली दो वैल्यू ट्रू आ जाए तो वो ट्रू होनी है, फिर तो आखिरी वाली से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बट अगर पहली वाली फॉल्स आ जाए तो वो वहां रुकता नहीं है, वो सेकंड वाली वैल्यू को चेक करेगा. अगर सेकंड वाली भी फॉल्स आ जाए तो बेचारे को फॉल्स होना ही पड़ेगा. बट अगर एक भी ट्रू आ जाए तो अपनी और की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी. So this is also a logical operator in Python and it returns the first true value. ठीक है ना? तो आपको एंड में अगर पहला फॉल्स मिल जाए तो वो सेकंड को चेक ही नहीं करेगा, वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा. सिमिलरली और के केस में अगर आपकी पहली वैल्यू ट्रू है तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा, आपको वो वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा. और इन दोनों के लॉजिक बहुत सिंपल है, ये आपको समझ आ गया होगा बाय द ट्रुथ टेबल. Now what is not? Not is nothing but the negation.
विच वी यूज। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई स्टेटमेंट है ट्रू, तो आप नॉट लगाते ही उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, या अगर कोई स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो उस पर नॉट लगाते ही आप उसे ट्रू में कन्वर्ट कर रहे हो। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ नॉट। So this is also a logical operator which inverts the truth value. यार अब ये लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कि वो ऑपरेटर जो कि हम लॉजिक बिल्डिंग में यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इन और इस वर्ड का क्या यूज है देख लेते हैं। वैसे तो ये ज्यादा काम नहीं आते हैं, इस वाला ज्यादा काम नहीं आता, इन हमें आगे काम आएगा लूप में। So this keyword is used to check if a container contains a value. This keyword is also used to loop through the container. तो इन वैल्यू हम तब यूज करते हैं फॉर के साथ। तो जब मैं लिखती हूँ ना दैट फॉर, ओके फाइन, लेट मी ओपन दी कोड। तो यार देखो, तो यहाँ पे फॉर था, सो फॉर वेरिएबल इन रेंज 5। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया ना इन, दिस इज अ की वर्ड, इट हैज अ मीनिंग, ठीक है ना। Okay, now what is is? So is this keyword is used to test the object identity. That is to check if both the object take the same memory location or not. इसका use अपन आके देखेंगे, right? Now let's talk about the alliteration keywords, that is for, while, break and continue. तो मैंने आपको बताया था कि that for and while is used for looping. Now break and continue, these are used to control the flow of a loop. For example, मुझे 1 to 100 loop चलानी है, लेकिन मुझे वो वाली वैल्यू नहीं चाहिए जो कि 10 के मल्टीपल हो। मतलब कि मुझे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, मैं नहीं चाहती कि ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो, बाकी सारी प्रिंट हो जाए। So I need to control the flow of a loop. So I can use this by the break and continue. तो ब्रेक क्या करता है ना कि द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक आउट द लूप एंड पास द कंट्रोल टू द नेक्स्ट फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द लूप। तो वो लूप को वहां ब्रेक कर देता है एंड लूप के जस्ट बाद जो लाइन होती है वहां पे आपका इंटरप्रेटर चल जाता है चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए। कंटिन्यू क्या होता है, ये कंटिन्यू वर्ड अपन यूज करेंगे, दिस इज टू नेग्लेक्ट इट। तो बेसिकली ये एंड नहीं करता लूप को, लेकिन वो जो करंट आपकी लूप थी ना, फॉर एग्जांपल वो 10th वाली जो लूप है मैं उसे कट कर दूंगी, ठीक है ना। सो अभी के लिए आप बस इतना सीखो दैट ब्रेक एंड कंटिन्यू, दीज बोथ आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ लूप। एल्स, इफ एंड एलिफ, ये तो आपको समझ आ ही गए होंगे कि दीज आर द कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। एंड आप इफ यूज करते हो तो आप एल्स भी यूज करते हो, बट एलिफ इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल पहला केस लिया इफ, फिर आप ले सकते हो एलिफ। एलिफ इज नथिंग बट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एल्स इफ। तो मतलब इफ वरना ये वाला, वरना ये वाला। सो इफ के बाद वरना की जगह पर ने क्या किया, या तो ये कंडीशन हो या फिर ये वाली कंडीशन चेक कर लो, या फिर ये वाली कंडीशन चेक कर लो। एल्स में क्या होता है, इफ एल्स। तो बेसिकली इफ में तो मैं कंडीशन चेक करवा रही हूँ, बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप एल्स वाला प्रिंट कर दो। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, बट अगर मुझे हर एक स्टेज में कंडीशन चाहिए तो मैं यूज करूंगी एल्स इफ। दैट इज द ओनली डिफरेंस। So these three words are the control statement which are used for decision making. Now some more keywords like def. So def is used to declare the function. Now what is return? This keyword is used to return from the function. So for example, आप चाहते हो कि function हमेशा कुछ ना कुछ value तो return करे, तो आप उसमें आप लिख सकते हो that return 0 or return the character, anything which you want. तो अगर फंक्शन कुछ भी उससे कुछ नहीं मिला अपने प्रोग्राम में, अपने वर्क में, तो वो कुछ नहीं, तो वो रिटर्न कर देगा जो भी आपने बोला है। एंड व्हाट इज yield? दिस कीवर्ड इज आल्सो यूज्ड फॉर रिटर्न स्टेटमेंट, बट इट रिटर्न अ जनरेटर। अब ये क्या होता है हम आगे देखेंगे, अभी आप बस समझो कि क्या क्या है हमारी सीरीज में। व्हाट इज क्लास?
क्लास हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और अच्छे से सीखेंगे, बट दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड एंड दिस इज टू डिक्लेयर द क्लास, as simple as that. What is pass? So pass is nothing but a null statement in a Python, and it does nothing. It is just to prevent the indentation error and is used as a placeholder. Now there's a word del. Del is nothing but a delete. So any variable or list value can be deleted using this del keyword. Now the final more important keywords are try. This keyword is used for exception handling. Used to catch the error in a code using the word except. Code in try block is checked. If there is any type of error, except block is executed. तो बेसिकली जो ट्राई ब्लॉक होता है वो पूरा चेक होता है, और अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो वो जो एक्सेप्शन ब्लॉक होता है ना मेरा, वो चेक होता है. अब जैसा कि बात किया एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है, तो वही नीचे आ गया, दैट एक्स explained above. This work together with a try to catch the exception. Finally क्या होता है, no matter what is the result of a try block, block termed finally is always executed. What is raise? So we can raise an exception explicitly with the raise keyword. And now what is assert? So this function is used for debugging the purposes, usually used to check the correctness of a code. If a statement is evaluated to be true, nothing happens. But when it is false, assertion error is raised. One can also print a message with the error separated by a comma. सो आई होप आपको इन कीवर्ड्स की वर्क देखते हुए पता चल जाएगा कि पाइथन के पास सिर्फ कीवर्ड्स इतने सारे फंक्शन कर सकते हैं, तो प्री डिफाइंड फंक्शन एंड मॉड्यूल तो कितना कुछ कर सकती हैं, राइट? So I'm very excited for this series, and if you are also looking forward to this series, then don't forget to subscribe to the channel, and thank you so much for watching this video.